Hello dear friends, welcome back. In our previous lecture students, you study lesson number 27, The Dreadful Guest. You study the first page of this lesson. Okay. So in this lesson students, you study once upon a time the king of Russia decided to hold a grand feast. He invited princess, rich merchants, brave warriors and all the important peoples in his kingdom. One night of the feast, the king and his guest sat together at a long table in the banquet hall. They talked and laughed, and everyone was happy. Suddenly, a huge animal burst into the hall. It was a horrible looking a dragon. It was as tall as a tree, as broad as a house, with teeth like a spikes and claws like a knife. His skin was hard and scaly, and his eyes red. Red, not red, not flames shot forth from his mouth and black smoke from his nostrils. Now, this dragon was also a very mean creature. He loved to be a spoil sport and a killjoy. He walked straight to the end of the table and pushed himself between the king and the queen. Everyone stopped talking. Everyone was scared. Well, not everyone. The brave warrior even was not afraid to dragons. What a rude, impolite creature you are, he said angrily. So, students, in our previous lecture, you study in this lesson that one time King of Russia, he hold a grand party in his kingdom. So that time he invited very rich merchants, brave warriors and princes and some important peoples in his kingdom. When they all sat together in the banquet hall, that time they all are talk to each other, laugh, and everyone was happy. Everyone was happy. But suddenly, at that time, a huge animal burst into the hall, and it was a very horrible. It looking like a dragon, like a dinosaur. It was as tall as a tree and as broad as a house. So that time students when everyone see when everyone was saw that huge animal. So all the peoples who who are sat together in the banquet hall, they all are very scared and upset, and they all well, not everyone, because they all are scared. Everyone was scared, but the brave warrior, even, who was not afraid of dragons, and what a rude impolite creature you are, he said angrily, and he talked to with him that you are very impolite and you are very mean creature. स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे पिछले लेक्चर में रशिया के जो किंग हैं, उन्होंने उनके घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी. उसमें उन्होंने कुछ मर्चेंट्स, कुछ व्यापारियों को, कुछ ब्रेव वॉरियर्स को, कुछ प्रिंसेस को, कुछ शूर योद्धाएँ, मतलब उन सबको उन्होंने वहाँ पे बुलाया था. वो सब लोग जब वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने पार्टी रखी थी, उस हॉल में सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, सब बहुत खुश थे. बट सडनली वहाँ पे जो एक बड़ा सा एनिमल आ गया, जो दिखने में बहुत ही डरावना था, डेंजरस था, लुकिंग लाइक अ ड्रैगन, मतलब वो डायनासोर जैसे दिख रहा था. वो पेड़ जैसा ऊंचा था और घर जैसा चौड़ा था. उसके जो दांत थे वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक्स थे. उसके क्लॉज लाइक अ नाइफ, मतलब उसके दांत और उसके हाथों के जो नाखून थे वो बहुत ही तेज़दार और धारदार थे, जिसकी वजह से, और उसकी स्किन वो भी बहुत ही हार्डी और स्केली थी. उसकी जो आइज़ थी वो भी लाल थी, और उसके मुंह से आग जैसा कुछ बाहर निकल रहा था. और उसी वजह से वहाँ पर बैठे जो सभी लोग थे वो सब उससे डर गए थे. वो कोई भी अच्छा फील नहीं कर रहा था. बट उन्हीं में बैठा हुआ एक जो ब्रेव वॉरियर था, इवन, उसने बहुत ही गुस्से से वो ड्रैगन से वो बात करने लगा.
व्हाट ए रूड इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, तुम बहुत ही रूड हो, इम्पोलाइट हो। इस तरह से उसने उनसे बात की क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी नहीं घबराया। सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। Okay students, so listen. Just then the servants brought in the food and set the platters on the table, but before they had a chance to serve the food to the king and the queen and the guest, the dragon began to gobble. The dragon began to gobble up everything. The king and the queen did not know what to do. Nobody could stop the dragon, but even spoke up again. Nobody has never taught you any manners. I can see, he said. I hope you choke on the food. You are gobbling you are gobbling up so greedily. Just then the servants brought in the food and set the platters on the table. जो सर्वेंट्स से स्टूडेंट्स, उन्होंने जब जो सारा खाना उन्होंने बनाया था, जो भी डिशेस बनाई थी, वो सभी उन्होंने टेबल पे रखी थी। बट किंग को और क्वीन को सर्व करने से पहले, बट बिफोर दे हैड टू चांस टू सर्व द फूड टू द किंग एंड द क्वीन एंड द गेस्ट, द ड्रैगन बिगैन टू गोबल अप एवरीथिंग। पर जो सर्वेंट्स थे, उनको किंग को, क्वीन को, जो गेस्ट आए थे, जो सभी मेहमान वहाँ पर आए हुए थे, उनको वो खाना सर्व करने से पहले ही जो ड्रैगन था उसने क्या किया, सभी के ऊपर उसने झड़प मार दी। द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जो किंग और क्वीन थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। दे ऑल आर वेरी स्कैर्ड। नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन। कोई भी ऐसा नहीं था जो उस ड्रैगन को रोक सके। बट इवन स्पोक अप अगेन। बट वहाँ पर जो ब्रेव पर्सन इवन था, वो फिर से बात करने लगा। नोबडी हैज़ एवर टॉट यू एनी मैनर्स, आई कैन सी ही सेड। उसने क्या कहा कि किसी को भी मैनर्स नहीं है। आई होप यू चोक ऑन द फूड और गोबलिंग अप सो ग्रीडीली। मुझे पता है, आई होप यू चोक ऑन द फूड यू आर गोबलिंग अप सो ग्रीडीली। तुम बहुत ही लालची हो। नाउ दिस वॉज मोर देन द ड्रैगन कुड स्टैंड। He puffed out fire and sprang to his feet. I dare you to come out and fight with me, even. He roared, are you ready? Of course, I said, even. Of course, said Even. What have you done, Even? Said the king. Let's put up with the dragon for some more time. You cannot fight a dragon. It will burn and kill you in no time. So students, when now this was more than the dragon could stand. More than the dragon could stand, he puffed out fire and sprang to his feet. वो जो ड्रैगन था वो अपने पैरों पे, जब इवन ने उससे बात की बहुत ही गुस्से से कि तुम बहुत लालची हो, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो उस टाइम जो ड्रैगन था वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। एंड ही puffed out fire and sprang to his feet. और जो अपने मुंह से वो आग उगल रहा था, वो उगलने उसने बंद कर दिया और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। आई डेयर यू टू कम आउट एंड फाइट विथ मी। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, इवन। ही रोअर्ड, आर यू रेडी? उसने इवन का नाम लिया और पूछा, बहुत ही रोअर्ड मतलब ज़ोर से। उसका आवाज़ जो था, उसकी जो आवाज़ थी वो सारी जगह पे घूमने लगी। आर यू रेडी? उसने पूछा इवन से कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो? ऑफ कोर्स सेड इवन। फिर इवन ने क्या कहा? हाँ, मैं तैयार हूँ। व्हाट हैव यू डन इवन? सेड द किंग। लेट्स पुट अप विद द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम। यू कैन नॉट फाइट अ ड्रैगन, इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम। जो किंग थे वहाँ पर, उन्होंने इवन से क्या कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसे जाने दो, थोड़ा और टाइम उसे जाने दो, वो चला जाएगा। तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फाइट अ ड्रैगन, इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम। तुम ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें कुछ ही समय में जलाकर मार देगा। स्टूडेंट्स, यू सी द पिक्चर। सम पीपल, सम गेस्ट, king and queens, all they sat together on this table, and you see the dragon
the huge animal. You see this looking like a dinosaur. But Ivan was not afraid. He knew that dragons were dreadful but not intelligent. He was sure he could find a way of killing the dragon. पर जो इवन था वो बिल्कुल भी नहीं डरा. जो किंग थे उन्होंने उससे कहा कि तुम उसे जाने दो, वो छोड़ दो, तुम उससे फाइट नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें कुछ ही समय में जला के मार देगा. बट जो इवन था वो बिल्कुल भी नहीं डरा. बट इवन वॉज नॉट अफ्रेड. उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा. ही न्यू दैट ड्रैगन्स वेर ड्रीडफुल बट नॉट इंटेलिजेंट. जो इवन थे उन्हें पता था कि जो ड्रैगन है वो डरावना ज़रूर है बट बहुत ही डरावना है, डेंजर है, बट वो इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वो बुद्धिमान नहीं है. ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन. उन्हें जो इवन थे उसको खुद पे विश्वास था कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा वो ड्रैगन को मारने का. Everyone walked out to the palace courtyard. The dragon and the brave warrior faced each other. The dragon smiled, a very mean and weak smile. Now, how shall I kill you, you silly fool? He asked Ivan. Shall I burn you to death? Shall I smother you with worms? Or better still, shall I tear you up with my knife claws? Or shall I eat you up with my spiked teeth? Everyone walked out to the palace courtyard. वहाँ पर जो सभी लोग जहाँ पे मौजूद थे वो सब लोग चलकर पैलेस का जो कोर्टयार्ड था, मतलब जो वहाँ का जो भी खाली एरिया होगा, मतलब जहाँ पे कोई लोग नहीं होंगे, मतलब उन वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको डर लग रहा था, तो डेफिनेटली वो वहाँ से दूर चले गए, कोर्टयार्ड में चले गए, मतलब जो पैलेस का जो खुला मैदान होगा उसमें चले गए. द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड ईच अदर. जो ड्रैगन और ब्रेव वॉरियर मतलब इवन वो दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए खड़े हो गए. द ड्रैगन स्माइल अ वेरी मीन एंड वीक स्माइल. जब ड्रैगन ने जब हंस पड़ा, मतलब ड्रैगन की जो हंसी थी वो बहुत ही मीन थी और बहुत ही वीक थी, मतलब उसकी जो हंसी थी उसको खुद पे नाज था, उसको खुद पे ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो अब इवन को कुछ ही क्षणों में मार डालेगा. नाउ हाउ शैल आई किल यू, यू सिली फूल. और फिर उसने क्या कहा कि अब देखो तुम बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हो, मूर्ख हो, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मार डालूंगा. ही आस्क इवन. फिर उसने इवन से कहा शैल आई बर्न यू टू अ डेथ, मैं तुम्हें जला के मारूंगा. शैल आई जो ड्रैगन था उसने इवन से पूछा शैल आई बर्न यू टू डेथ, क्या मैं तुम्हें जला के मारूं. शैल आई स्मूदर यू विथ अ फॉर्म्स, क्या मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूँ. और बेटर स्टिल शैल आई टीयर यू अप विथ माई नाइफ क्लाउज. फिर जो ड्रैगन थे उसने इवन से क्या पूछा, और क्या मैं तुम्हें मेरी जो नाइफ से, मतलब मेरे जो हाथों, मेरे जो पंजों के जो नाखून है, क्या मैं इनसे तुम्हें फाड़ डालूँ. और शैल आई ईट यू अप विथ माई स्पाइक स्टिक, और क्या मैं तुम्हें मेरे मेरे धारदार जो दांत है उनसे खा लूँ. In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of a way of tricking the weak creature. In the meanwhile, however, the clever Ivan had thought of a way of tricking the weak creature. और उसी टाइम जो इवन था, मतलब जो ब्रेव वॉरियर इवन था, वो सोच रहा था, जो इवन था वो बहुत ही होशियार था, बहुत ही ज़्यादा होशियार होने की वजह से वो उसी टाइम सोचने लगा हम कोई ऐसी ट्रिक सोचनी पड़ेगी इस वीक क्रिएचर से सामना करने के लिए. ही फोल्डेड हिज आर्म्स ऑन हिज चेस्ट एंड सेड इन द क्लियर वॉइस, नाउ लुक हियर ड्रैगन, when you dared me to fight you I agree readily. I thought it would be a fight between just the two of us. Then he pointed behind the dragon. Why have you brought a whole army to help you fight? जो इवन था वो सोचने लगा कि कोई ऐसी ट्रिक ढूंढनी होगी इस क्रिएचर से सामना करने के लिए. ही फोल्डेड हिज आर्म्स एंड ऑन हिज चेस्ट एंड सेड इन अ क्लियर वॉइस, नाउ लुक हियर ड्रैगन, When you dare me to fight you, I agree readily. जो इवन थे उन्होंने अपने हाथों को अपनी जो बाजुएं थी उनको फोल्ड किया
और अपनी चेस्ट को, अपना सीना चौड़ा करके उन्होंने क्लियर वॉइस में, मतलब आवाज़ चढ़ा के कहा, नाउ लुक हियर, यहाँ पर देखो ड्रैगन, व्हेन यू डेयर मी टू फाइट यू आई एग्री रेडीली। जब तुमने मुझसे सामना करने की बात की, मुझसे फाइट करने की बात की, तो मैं उसी टाइम रेडी हो गया। आई थॉट इट वुड बी अ फाइट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अस। और जो इवन था उन्होंने फिर से कहा कि मुझे लग रहा है कि ये जो फाइट है ये हम दोनों के बीच की है। देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रैगन, फिर वो ड्रैगन के पीछे खड़ा हो गया। वाई हैव यू ब्रॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाइट। तो फिर उन्होंने फिर से पूछा कि तुम अपने साथ अपनी पूरी आर्मी क्यों लेके आए हो फाइट करने के लिए। So students, you thought that where is the army of dragon? So students, the dragon's army is his teeth, his claws, his claws, and the bonfire. जो ड्रैगन है उसकी आर्मी कौन सी है स्टूडेंट्स? आर्मी मतलब उसने अपने साथ कोई सिपाही नहीं लाए थे, उसकी जो आर्मी थी मतलब उसके धारदार, उसके दांत, उसके बहुत ही नोकीले जो नाखून थे वो नाखून, उसके बाद में वो जो अपनी मुंह से आग उगल रहा था, वो सभी उसकी आर्मी थी। और इसीलिए ईवन ने उनसे क्या कहा कि मुकाबला अब हम दोनों के बीच में है, तुम्हारे और मेरे बीच में, तो तुम अपनी आर्मी को बीच में क्यों ला रहे हो? मतलब ये जो तुम अपने जो औजार मुझे दिखा रहे हो कि तुम इससे मुझे खा लोगे, मुझे फाड़ डालोगे या फिर मुझे मार डालोगे, ये सारी चीज़ें तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुकाबला जब दोनों के बीच में है तो। द ड्रैगन वॉज एज स्टूपिड एज ईवन थॉट हिम टू बी। जो ड्रैगन था वो ईवन बहुत ही ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट था, बट जो ड्रैगन था वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था। He turned his head to see what Evan was pointing at. Quick as a flash of lightning, Evan drew his sword and cut off the dragon's head. और जो ड्रैगन था वो जब वैसे सोचने लगा कि ये ईवन ने क्या कहा, और उसी टाइम बहुत ही जल्दी से क्विक एज फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ईवन ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ द ड्रैगन्स हेड। और उसी वक्त जो ईवन थे उसने अपनी तलवार निकाली और ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर दिया। There he said, "We won't have to put up with his dreadful guest ever again. We won't have to put up with his dreadful guest ever again." और फिर लास्ट में उसने क्या कहा कि हमें इस ड्रीडफुल गेस्ट से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। You see this students, right? So students, I hope you understood this lesson very well. Now we will going to continue the exercise of this lesson in our next lecture. Thank you.